Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's lecture is modes of acquisition of. It is very important to understand about the importance of international law and the modes of acquisition territory according to the international law, so that the disputes can be settled down amongst the state over the ownership of the territory. And traditionally there are many techniques, there are many modes by which the territory can be captured, can acquired according to the international law. That includes occupation, prescription, accretion, cession, subjugation, and modern techniques are known as self-determination or something like that. So now we will discuss them one by one. Territory. The rules of international law, which are now regarded particularly settled by the International Committee of Nations, and to deal with the different problems regarding the possession of a particular portion of the territory, regarding the ownership of a particular territory, that is known as the acquisition of the territory. International law is a law of nation that describes that how to deal with the international disputes, and definitely when there is a dispute among the states regarding the occupation is the first method of the mode of acquisition of territory which is recognized under the international law. पहला मोड जो इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है टेरिटरी को एक्वायर करने का, वो ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन कैन बी डन वेयर नो वन हैज़ एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी. ऐसी टेरिटरी के जहाँ पर पहले किसी ने कोई अथॉरिटी ना दिखाई हो या वहाँ पर कोई अथॉरिटी मौजूद ना हो, अगर ऐसे एरिए को ऑक्यूपाई किया जाए तो जो सॉवरेन स्टेट उसको ऑक्यूपाई करेगी उसकी सॉवरेनिटी उसके ऊपर जो है वो तस्वुर की जाएगी, वो टेरिटरी उसी की तस्वुर की जाएगी. एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द टेरा नीलियस. टेरा नीलियस जो है वो दैट इज़ अ लैटिन फ्रेज, एक लैटिन फ्रेज है. अ टेरिटरी नो बॉडी ओन्स, कि वही बात कि जो टेरिटरी है उसको कोई ना रखता हो. जाहिर है अगर टेरिटरी किसी के पास होगी ऑलरेडी तो फिर उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, यूज़ ऑफ फोर्स एंड अदर मेथड्स, might be treaty or might be some other way. We will discuss that later on. But here we are talking about the occupation, and occupation means terra nullius. Terra nullius means कि जो स्टेट, जो टेरिटरी ऐसी है कि जिसको कोई ओन नहीं करता, and entirely vacant or inhabited by indigenous people who belong to no state. कि हो सकता है वहाँ पर कुछ एक दो लोग, चार लोग या कोई एक गिरोह रह रहा हो, लेकिन वो किसी भी स्टेट से बिलोंग ना करते हों, और या वो प्योरली जो है वो वेकेंट हो स्टेट. दिस कैन आल्सो बी डन इफ़ द स्टेट इज़ अबंडन बाय अ फॉर्मर स्टेट. कि कोई फॉर्मर स्टेट है, उसका कोई हिस्सा था, उसने उसको अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, तो देन दैट टेरिटरी कैन बी एक्वायर्ड बाय द मोड ऑफ ऑक्यूपेशन. और डिस्कवर्ड, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अनडिस्कवर्ड है, एग्जिस्ट करता है, कोई एरिया, कोई लैंड है, कोई पीस ऑफ लैंड है, बट दैट इज़ नॉट डिस्कवर्ड अप टिल नाउ, and the individual or the group of individual identified or discovered that particular area, and then they can establish their territory, their sovereignty over there, कि वहाँ पर वो अपनी territory establish कर सकती हैं, state territory बन सकती है, state की jurisdiction बन सकती है, and that is also known as the occupation. इस किस्म के method के ज़रिए जो territory acquire की जाएगी उसको occupation भी कहा जाता है. The occupation of terra nullius would be effective if two requirements are fulfilled. यानी कि कोई भी स्टेट अगर ये जाकर कहती है कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं थी, एक फ्री टेरिटरी थी, इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, और मैं अब ये मेरी टेरिटरी है, मैंने कब्ज़ा कर लिया, जो पहले बताई हैं आपको कि कोई ओन नहीं करता था, और हो सकता है कि किसी मसले पर कोई दूसरे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनदर स्टेट इमर्ज, अनदर सॉवरेन स्टेट इमर्ज, और कहीं नहीं तो मेरा हिस्सा था, तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो जो टेरा नीलियस है उसको साबित करने के लिए देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स. इफ़ दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, देन अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ इट कैन बी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ दैट स्टेट, दैट दिस स्टेट हैज़ सोवरेन अथॉरिटी, हैज़ एक्वायर्ड द territory of that particular area by occupation. Now what are those two requirements? The first is an intention to occupy. The first important thing is intention to occupy. कि सबसे पहली चीज़ जो है वो इंटेंशन है ऑक्यूपाई इसको
एनेमस अक्वापेंडी भी कहते हैं। एनेमस अक्वापेंडी मीन्स कि वेयर देयर इज़ एन इंटेंशन टू ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, इफ़ द स्टेट went at any place and after some time they went away from that place and some other state came and ultimately claimed that terra nullius। तो ये नहीं होगा कि एक स्टेट आती है वो वहाँ पर कुछ अर्सा वहाँ पर जाए और उसके सॉवरन रहे, उसके बाद उस एरिया को कैप्चर करे और चली जाए वहाँ से छोड़ के और कभी क्लेम ना करे। उसके बाद एक दूसरा स्टेट आए और वो स्टेट उस एरिया को कैप्चर कर उसके बाद क्लेम कर ले, तो पहली स्टेट का नहीं जी मेरी तो यहाँ पर मैंने इसको पहले दरियाफ्त कर लिया था, जो मैंने आपको बताया कि डिस्कवर के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो उस क्योंकि उसने इंटेंशन की ही नहीं कभी, तो इंटेंशन जब नहीं की थी तो जो अगर बाद वाली स्टेट ने इंटेंशन की तो उसका टेरा नूलियस क्लेम जो है वो फिर माना जाएगा। तो दैट्स वाई द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ दी एन इंटेंशन टू ऑक्यूपाई एनेमस ऑक्यूपेंडी। कि अगर एनेमस ऑक्यूपेंडी होगा तो फिर अल्टीमेटली जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस कंसीडर किया जाएगा एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी कंसीडर्ड कि स्टेट जो है वो दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। द सेकंड वन, एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी ओवर द टेरिटरी सो ऑक्यूपाइड, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कि जो स्टेट है, जो टेरिटरी है, उसकी सॉवरेनिटी जो है वो एक्सरसाइज करे उसको ऑक्यूपाई करने के बाद। अगर वो अपनी एक्सरसाइज नहीं करती है एडिक्वेट सॉवरेनिटी को दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, अगेन दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज टेरा नूलियस, दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ऑक्यूपेशन। यानी कि ऑक्यूपेशन में अब दो चीज़ होगी, पहली कि द वन इज़ द इंटेंशन टू ऑक्यूपाई, कि इंटेंशन हो कि ऑक्यूपाई करेंगे, और दूसरी क्या है कि एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी, कि जो सॉवरेनिटी का एक प्रिंसिपल है कि वो उसके ऊपर विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है वो रूल करे, वहाँ पे लोग हों और स्टेट हो, और अगर वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस होगा एक्सरसाइज कर रहा है तो देन इट इज़ अगेन इन दीज टू कंडीशन, इफ़ दीज टू कंडीशन आर फुलफिल्ड then it can be considered that this particular state, this particular area is known as the occupied by that state। इसके तीन बड़े अहम जो है पेनल्टी ऑफ केसेस आर देयर, बहुत सारे सॉरी केसेस मौजूद हैं, लेकिन जो तीन बड़े अहम केसेस हैं इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। द वन केस इज़ द ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, जो एक बड़ा अहम केस है, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में 1933 में हुआ। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की जो लीग ऑफ नेशन के तहत बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले बनाई गई थी, उसकी जो कोर्ट थी, जिस तरह अब अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन की है कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, तो वहाँ पर उस वक्त थी परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, को PCIJ कहा जाता है। उसका एक केस है बड़ा मशहूर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, कि जो ये शो करता है कि जिसमें there was a dispute between Norway and Denmark was able to prove the circumstances which justified two elements, that the intention as well as the adequate exercise of sovereignty। कि नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान डिस्प्यूट था कि वो दोनों कहते थे कि जी हमने ऑक्यूपाई किया तो दिस इज़ दी आवर पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, और बिकॉज दैट वाज अ टेरा नूलियस सो वी ऑक्यूपाइड दैट। So court ultimately after hearing decided that the area belonged to the Denmark, and why the court decided, because Denmark was able to prove the circumstances that these two elements, the intention and the adequate exercise of sovereignty, was exercised by the Denmark at that time। कि डेनमार्क को हक में किया फैसला, और वो इसलिए किया कि डेनमार्क ने ये साबित कर दिया था, डेनमार्क ने, कि जो ईस्टर्न ग्रीनलैंड है वहाँ पर वो न सिर्फ उनकी इंटेंशन थी ऑक्यूपाई करने की, बल्कि वहाँ पर वो एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी भी जो है वो करते रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कोर्ट डिसाइडेड इन देयर फेवर। द सेकंड केस दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट, दैट वाज द क्लिप्टन आइसलैंड केस ऑफ 1931। Clipperton Island, again that was a case between the France proved that they particularly hold that territory, and that's why they are known to be as the ruler of that state. That is known as the territory of the Clipperton Island should be known as the part of the territory of the France, and ultimately the France by again these two requirements showed
that France hold not only that particular exercise of sovereignty over that area, but also France had the intention to occupy that. So the case was decided in the favor of the France, because France by symbolic act had given due notice to the world by publication of declaration of sovereignty in English, कि उसने अपना जो है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब उसको कैप्चर किया तो वर्ल्ड को नोटिस कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरी जो है वो यहाँ पर है। तो जब डिक्लेरेशन दे दिया तो इट मीन्स कि इंटेंशन भी बता दी और एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी भी शो करके दिखा दी। एक तीसरा जो बड़ा अहम केस है, दैट वाज द बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड बिटवीन द फ्रेंच गवर्नमेंट। अगेन दैट वाज द डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी। ये भी टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट था कि दैट वाज द मैनक्रीज एंड एक्रोज केस। मैनक्रीज एंड एक्रोज, दीज वर द आइलैंड, कि ये आइलैंड थे और इस आइलैंड पे जो है वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो है वो दोनों ही अपनी अपनी जो है वो अथॉरिटी शो करते थे कि ये हमारी जो है वो सॉवरेनिटी थी और हमारी लेजिस्लेटर थी। बट द कोर्ट आफ्टर hearing decided in the favor of the Great Britain, and they court assessed that these elements had preferred the claim of the Great Britain. Again, the similar techniques, the both intention to occupy that territory, that is according to the animus occupandi, and that is the other one is the factum, that is the adequate exercise of sovereignty over the territory which is occupied by the Great Britain। कि जो सर्कमस्टांसिस से उन्होंने ये देख कर डिसाइड किया कि ये जो टेरिटरी है ये जो है वो यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके पास जो है वो होनी चाहिए, तो उनके हक़ में फ़ैसला किया गया। इसलिए ये दो रिक्वायरमेंट हैं कि जब भी ऑक्यूपेशन करनी हो, कि एक तो इंटेंशन टू ऑक्यूपाई एंड द अदर वन इज़ द एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। When we talk about occupation, there are two theories which establish the occupation of a state over a particular area of land. The first theory which is known as the theory of continuity. दो theories हैं कि जो मज़ीद इस्टेब्लिश करती हैं कि कोई जो एरिया है उसको ऑक्यूपेशन के ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया है कि नहीं किया गया। उसमें पहली जो है वो theory of continuity है। Theory of continuity means occupation of a particular area, कि आप एक पर्टिकुलर एरिया है उसको आपने ऑक्यूपाई किया हो स्टेट ने, लॉन्ग कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी, और उस पर काफ़ी लंबी जो है अरसे तक वो एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी वो कर रहा हो। जिस तरह मैंने पहले बताया कि लॉन्ग कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी मीन्स कि अगर एक स्टेट आई और उसने कोई 2 दिन 4 दिन किया, उसके बाद दूसरी स्टेट आई, उनके दरमियान जहाँ कोई कब्ज़ा कर लिया, इस तरह पुराने ज़माने में हुआ करता था, तो दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी। And if there is no long continuous exercise of effective authority, then it is not an occupation according to the international law. So according to the theory of continuity, the occupation of of that particular area is vital, and the second condition that is not only an occupation but also a long continuous occupation, long continuous exercise of effective authority of that particular area. If that is a long continuous exercise of authority, then ultimately it can be established according to the international law that the state has particularly occupied that particular territory, the state has acquired that particular territory. The second theory is known as the theory of contiguity. You know, there might be possible that a state exercise control over a particular area and they occupied a particular area, but might be possible that an area which is adjacent to that particular area is not occupied by some other state, because it was a very complex situation in the old times, particularly when there were no boundaries, when there were no international boundaries and there were no international borders। कि पुराने ज़माने की हम बात करते हैं तो वहाँ पर उस वक़्त ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स हुआ करते थे, ना इंटरनेशनल बाउंड्रीज हुआ करती थी। स्टेट की टेरिटरी जहाँ तक स्टेट चाहती थी अपनी टेरिटरी कायम करती थी, उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये जो ऑक्यूपेशन थी, इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हाउ वी डिफाइन, फॉर एग्जांपल कि एक एरिया पीस ऑफ लैंड है दैट इज़ दी 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके 500 स्क्वायर किलोमीटर पे उन्होंने ऑक्यूपेशन किया है और वहाँ पर वो रह रहे हैं, इफेक्टिव कंट्रोल भी है, और बाकी जो एरिया उससे एडजेसेंट है दैट इज़ अगेन 500 स्क्वायर किलोमीटर, वो किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी ये थी
कि द एरिया विच इज़ adjacent to that particular area, that will also be known as the occupied that particular state. So, whereby the sovereignty of the occupying state reaches to those neighboring territories which are geographically pertinent to the area of lodgement and not under the control of a particular other state. के पर्टिनेंट एरिया ऑफ लॉजमेंट तो साथ मिलता हो, यानी कि बिल्कुल करीब हो, उसके एडजेसेंट हो, साथ हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसके ऊपर किसी का हुक्मरानी ना हो, किसी और सॉवरन स्टेट ने उसको ऑक्यूपाई ना किया हो, तो फिर जो एरिया है वो भी ऑक्यूपेशन में आएगा और वो भी उसको दे दिया जाएगा. तो दिस वाज द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ऑक्यूपेशन.